السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا كثيرا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما، رب زدني علما، رب زدني علما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا وزدنا علما وزدنا علما. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. آمين يا رب العالمين. الحمدللہ، اللہ کی خاص توفیق کے ساتھ ہم لوگوں نے اپنا پہلا سیشن کیا، اور جس کے اندر ہم لوگوں نے قرآن کی فضیلت کو دیکھا، تجوید کی اہمیت کو تھوڑا سا جاننے کی کوشش کی۔ اللہ تعالی ہمیں ایسا علم عطا فرمائے جو ہمارے دلوں میں راسخ ہو جائے، اور جو ہمارے حافظے کے اندر چست ہو جائے، حافظے کے اندر انڈلج ہو جائے اور ہمارے عمل کا ذریعہ بن جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا علم عطا فرمائے، آمین۔ اچھا جی، ہم لوگوں نے لاسٹ ڈے جب پڑھا تھا تو اہمیت تجوید کے اندر ہم لوگوں نے یہ پہلا اپنا جو پیج ہے اس کو دیکھا تھا، ٹھیک ہے۔ اچھا، جو پہلا پیج ہم نے دیکھا تھا ہم اس کو ایک بار دوبارہ دیکھ لیتے ہیں، کیونکہ آپ کو نیکسٹ مجھے یہ تمام سٹوڈنٹس کو گروپ کے اندر سنانا ہوگا، ٹھیک ہے نا، کیونکہ ہم جب تجوید کی اہمیت کو یاد کریں گے تبھی ہمیں اسے پڑھنے کا مزہ آئے گا، اسے پڑھنے کا دل کرے گا، جب ہمارے دماغ کے اندر وہ آیات اور وہ احادیث موجود ہوں گے، ٹھیک ہے نا۔ تو آپ کے لیے یہ آسانی ہے انشاءاللہ تعالیٰ کہ جس سے آیت یاد ہوتی ہے عربک کی تو وہ عربک یاد کر لے، اگر عربک نہیں یاد کر سکتے تو صرف اور صرف ترجمہ سنا دیں، ٹھیک ہے نا۔ تو ہم ایک بار دوبارہ دیکھ لیتے ہیں۔ رسول اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں سورۃ البقرہ کے اندر، الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتی، وہ لوگ کہ جن کو ہم نے کتاب عطا فرمائی ہے وہ اس طریقے سے تلاوت کرتے ہیں جس طریقے سے تلاوت کرنے کا حق ہے، یعنی حق ادا کرتے ہیں تلاوت کا۔ اس ضمن کے اندر ایک مجھے حدیث یاد آئی، وہ بھی ذکر کرتے چلتے ہیں۔ ایک دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ ایک جنگ پہ گئے، ایک سفر پہ گئے، تو راستے میں پڑاؤ ڈالا، بہت تھکے ہوئے تھے صحابہ، کیونکہ ظاہر ہے آپ لوگ جانتے ہی ہیں کہ اس وقت وسائل کم تھے اور ایمان کے جذبے بہت زیادہ تھے۔ کچھ صحابہ ہوتے تھے جن کے پاس سواریاں ہوا کرتی اور بہت سوں کے پاس نہیں بھی ہوا کرتے، تو وہ پیدل جایا کرتے تھے جنگ کے لیے۔ کبھی وہ بیٹھ رہے ہیں اونٹ پر سواری پر، وہ اتر رہی ہیں، پھر وہ بیٹھ رہے ہیں، اس طریقے سے سفر مکمل ہوتا۔ انتہائی تھکن سے چور سب نے پڑاؤ ڈالا۔ اب کیا دیکھتے ہیں کہ رات کو نیند بھی غالب ہے، تھکن بھی بہت زیادہ ہے، مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چکر لگا رہے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ ابو موسیٰ اشعری، جو کہ انتہائی جن کا مقام قراء کے اندر بڑے قراء ہیں، صحابہ کے اندر ایک عظیم ان کا مقام ہے ابو موسیٰ اشعری کا رضی اللہ عنہ، وہ ان کی خوبصورت تلاوت کی وجہ سے وہ مشہور ہیں۔ اور کیا دیکھتے ہیں کہ وہ اللہ کے حضور کھڑے ہیں اور تلاوت کر رہے ہیں انتہائی خوبصورت آواز میں۔ وہ کر کے فری ہوئے تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ابو موسیٰ، تمہیں تو داؤد علیہ السلام کی طرح کے اس طرح کا لہجہ، اس طرح کا ترنم دیا گیا ہے۔ تو کہنے لگے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر مجھے پتا ہوتا کہ آپ میری تلاوت سن رہے ہیں تو میں اسے اور زیادہ آپ کے لیے خوبصورت اور زیادہ لہجے سے پڑھتا، اور زیادہ خوبصورت کر کے پڑھتا۔ سبحان اللہ، دیکھیں کس طریقے سے اس کو قرآن کو خوبصورت پڑھنے کا کیا کیا اجر ہے، کیا اللہ تعالیٰ کے ہاں جو اس کا مقام ہے۔ اس طریقے سے ایک دفعہ ایک صحابی سورۃ الکہف کی تلاوت کر رہے تھے، تو کیا دیکھتے ہیں کہ ان کے اوپر ایک سایہ کیا ہوا ہے ایک بادل نے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے بتایا کہ اللہ کے رسول، ایک بادل نے سایہ کیا ہوا تھا اور میری جو اونٹ اونٹ تھا، غالباً گھوڑا وہ جانور تھا، وہ بدک رہا تھا۔ تو رسول نے فرمایا کہ تمہاری اس تلاوت کی وجہ سے تم پر سکینت اتر رہی تھی قرآن آسمان سے تمہاری اس تلاوت کی وجہ سے، تمہارے اس ترنم کی وجہ سے سکینت نازل ہو رہی تھی۔ سبحان اللہ، خوبصورت قرآن پڑھنے کا بہت اجر ہے، بہت اجر ہے، ٹھیک ہے نا۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَرَتِّلْ الْقُرْآنَ ترتیلا، قرآن کو اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ آپ قرآن کو خوب ٹھہر ٹھہر کر تجوید سے پڑھو۔ اب دیکھیں یہ جو قرآن مجید کے اندر جہاں بھی
اللہ ताला ने नबी करीम सल्लम को कोई हुक्म दिया है या सहाबा को कोई हुक्म दिया है, और दरअसल उससे हुक्म देना मकसूद पूरी उम्मत मुस्लिमा है। तमाम क़यामत तक आने वाले सब लोग उसके ज़िमन में शामिल हैं। ठीक है ना, क्योंकि अल्लाह फरमाते हैं कुरान को हमने हिदायत का जरिया बनाया है, आलमीन के लिए, तमाम जहानों के लिए जो है ना, ये हिदायत का जरिया है। तो इसलिए ये हमारे ऊपर भी फर्ज है, हमारे ऊपर इसका हुक्म है कि वरत्तिल कुरान तरतीला, ये हमें कहा गया है कि कुरान को खूब ठहर ठहर कर तजवीद से पढ़ो। ठीक है। तीसरी जगह फरमाया कुरान अरबियन गैर ज़ी इवजिल लअल्लहुम यत्तकून, वो कुरान जो अरबी में है, इसकी इबारत, अरबी इबारत हर किस्म की कजी और खामी से पाक है। ये कुरान करीम के अंदर ऐसा मुमकिन ही नहीं है कि कोई गलती हो। आप उसे 1,000 दफा पढ़ लें या जितना चाहे पढ़ लें, आप उसके अंदर गलती नहीं निकाल सकते। कुरान मजीद इतने सालों से तबाह हो रहा है, और उसके बावजूद भी ना जबर की गलती ना जेर की गलती। देखिए ना, ये कुरान का हुस्न है, हदीस का हुस्न है कि हदीस आज तक, इतने 1,500 साल हो चुके हैं, अब तक एज इट इज हम तक नकल हो रही है। कितना बड़ा काम है जो मुहद्दिसीन ने किया है, किस कदर अल्लाह की रहमतें और बरकतें उन पर नाजिल हो रही हैं कि वो कितने हजारों सालों से अपनी कब्रों में हैं, और एक एक हदीस के पढ़ने वाले पर उन जिन्होंने उसे रवायत किया है, जिन्होंने उनको नकल किया है, जिन्होंने अपनी किताबों में आगे तसनीफ की है उसकी, उन तक तमाम लोगों तक वो सवाब पहुंच रहा है। अब देखिए ना, ये इमाम निसाई, इमाम मालिक वगैरह गालिबन ये 7 हिजरी के अंदर हैं, ये आए थे। ठीक है। तो 7 हिजरी से अब लगाएं जरा, 7वीं सदी से अब कौन सी सदी चल रही है, 15वीं सदी। कितने साल हो चुके हैं कि जब जब कोई इनकी हदीस पढ़ता है जो इन्होंने रवायत की है, तो उसे सवाब पहुंचता है। अब हम ये पढ़ रहे हैं यहाँ बैठे हुए इतने सालों बाद, और उन तक सवाब जा रहा है। कितना बड़ा अजीम काम है। फरमाते हैं इक़राउल कुरान बिलुहूनिल अरबी व अस्वातिहा, कुरान मजीद को अरब के लबो लहजे के मुताबिक पढ़ो, यानी अरबों की तरह। मखारिज, मखारिज कहते हैं, मखारिज निकला है मखरज से, मखरज कहते हैं निकलने की जगह को, मखरज से मखारिज, निकलने की जगहें। ठीक है। और सिफात, सिफात हम पढ़ेंगे। सिफात होती हैं 2 किस्म की, सिफात लाजमा, सिफात आर्जा। वो सिफात जिनसे, जिनके अदा करना बहुत ज़रूरी है, और उनका अदा ना किए बगैर आपको गुनाह मिलता है, अगर अदा नहीं करते तो उन्हें कहते हैं लाजिमा। और जो जिनको ना अदा करें तब गुनाह नहीं मिलता, तो उन्हें कहते हैं आरिजा। ठीक है, इस तरह इसे कहते हैं सिफात। जैसे कि हुन्ना मद हो गई, हुन्ना हो गया, और जो है ना इख्फा हो गया, ये जो है अगर ये सिफात आर्जा के अंदर आ जाते हैं। लाजिमा के अंदर वो है, जैसे मद होगी बड़ी, ये मखरज है, इस तरीके से। ठीक है। तो ये आप लोगों ने याद करने हैं। ठीक है। नेक्स्ट हमारा है आज, जो आज हमने पढ़नी है, हमने कल कल रिवाइज किया है जो हमने उस दिन पढ़ा था। आज एक और हदीस हमारे सामने है, इब्ने खुजैमा रदियल्लाह की। फरमाते हैं ज़ैद बिन साबित रवायत करते हैं, अन ज़ैद बिन साबित रदियल्लाहु अन्हु क़ाल, हज़रत ज़ैद बिन साबित रदियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नल्लाह युहिब्बु, अल्लाह ताला बेशक मोहब्बत करते हैं, पसंद करते हैं, अन युक़रअल क़ुरआन, कि कुरान को पढ़ा जाए, कमा उनजिला, उस तरह जिस तरह वो नाजिल हुआ है। यानी कुरान की तिलावत इस तरह की जाए जिस तरह उसे नाजिल किया गया। यानी कुरान मजीद पूरे मखारिज और पूरी सिफात के साथ नाजिल हुआ है। हजरत जिब्रील सलाम ने जो रसूलुल्लाह सल्लम के दिल पर इसको नाजिल किया है, वो पूरी किरात के साथ किया है इसको नाजिल। ठीक है। ये हदीस इस बात को वाजे करती है। तो जो लोग बिल्कुल जल्दी जल्दी पढ़ रहे हैं, बस उनके नज़दीक ये है होता है कि हम किसी तरीके से रमज़ान के अंदर 10 कुरान या 5 कुरान ख़त्म कर दें। हालांकि कुरान से ये मकसूद नहीं है कि आप उसे कितनी बार ख़त्म करते हैं। कुरान आपसे जो चाहता है वो ये कि आप उसको अच्छे अंदाज से पढ़ें, खूबसूरत अंदाज से उसकी तिलावत करें, उसको समझें, उसके हुक्म को समझें कि क्या हुक्म अल्लाह ताला दे रहे हैं। ठीक है ना, और फिर उस पर अमल करें। ये कुरान की मतलूब है, ना कि ये कि आपने 10 कुरान खत्म कर लिए हैं, 15 कुरान खत्म कर लिए और पूरे शहर में आपने ढिढोरा पीट दिया कि मैंने तो इस रमजान इतने कुरान खत्म कर लिए। वो मैं एक सल्फ का कॉल पढ़ रही थी कि एक आई थिंक शेख हमाद अब्दुल सत्तार रहमतुल्लाह उनका एक कॉल था। उन्होंने कहा कि सलफ सालहीन जो हैं वो छुपते थे और हम छपते हैं। वो कोई अमल करते तो छुपते थे वो, कि कहीं किसी को हमारे अमल का पता ना चल जाए। और हम लोग क्या है, हम लोग पब्लिश होना चाहते हैं। हम एक दूसरे से इसलिए पूछते हैं कि तुमने रमजान में कितने को रोजे रखे या कितने कुरान तुमने खत्म किए, इसलिए हम पूछते हैं ताकि हम अपना बता सकें कि हमने इतने किए हैं।
ठीक है ना। तो हमने इस चीज से भी बचना है। आगे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई हदीस है, रवाह दारमी की हदीस है, सनन दारमी की हदीस है, हस्सिनुल कुरआन बि अस्वातिकुम, कुरान को खूबसूरत पढ़ अंदाज से पढ़ो, खूबसूरत करो कुरान मजीद को, बि अस्वातिकुम, अपनी आवाजों के साथ, यानी खूबसूरत अंदाज में कुरान को पढ़ो, इस तरह कि सामने वाले के दिल कांप जाए, जिस तरह आप पढ़ रहे हो उसके दिल में नरमी आ जाए। फ़इन्ना सौतल हसन यजीदुल कुरआन हुस्ना, कि बेशक अच्छी आवाज कुरान मजीद के हुस्न को बढ़ाती है, यजीदु, ज्यादा करती है। ठीक है ना। तो हमें कुरान मजीद को खूबसूरत अंदाज से पढ़ने पर बहुत जोर दिया गया। अब देखें अल्लाह ताला, आज मैं एक आयत सुन रही थी कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जब कुरान पढ़ा जाता है ना इन लोगों पर, तो इनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं और इनके दिल नरम हो जाते हैं, ईमान वालों की अल्लाह बात कर रहे हैं। तो देखें अगर जो शख्स ऐसे कुरान पढ़ रहा है कि पता ही कुछ नहीं चल रहा कि जबर पढ़ रहा है या जेर पढ़ रहा है, तो सामने वाले या सुनने वाले का दिल कांपेगा, उसके रोंगटे खड़े होंगे, उसके दिल में नरमी आएगी। ये उस शख्स के पढ़ने से नरमी आएगी, या अपना भी जब इंसान पढ़ेगा कि वो आहिस्ता अंदाज में पढ़ता है, आराम आराम से एक एक लफ्ज को ठहर ठहर कर पढ़ता है, उसकी सही निकलने की जगह से पढ़ता है। ठीक है ना। अब हम आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ है कि मज़कूरा बाला आयात और हदीस शरीफा की रूह से मालूम हुआ कि कुरान मजीद को अगर तजवीद के खिलाफ तिलावत करोगे तो इसकी अरबियत और अरबों का लबो लहजा सब खराब होकर रह जाएगा, क्योंकि हर जुबान का एक मखसूस लबो लहजा होता है। जैसे कि हमारा उर्दू का लहजा होता है। अगर कोई हमारा जैसे कोई आता है बाहर से, अमेरिका से या कहीं भी अब्रॉड कंट्री से, तो वो उर्दू जब बोलता है तो हम लोग हंसते हैं उसके ऊपर, किस अंदाज में उर्दू बोल रहा है ना। तो इसलिए अब हर एक लैंग्वेज का एक अपना अंदाज, अपना लबो लहजा होता है। इसका लब व लहजा भी खालिस अरबों की तरह होना चाहिए, क्योंकि कुरान किस में नाजिल हुआ है, अरबी जुबान में नाजिल हुआ है। लेकिन अगर कोई शख्स कोशिश करे कि मुझे अरबों का सा तरीका अदायगी हासिल हो, तो इसके लिए इसको फन तजवीद का हासिल करना अज हद जरूरी है। फन तजवीद, तजवीद का फन हासिल करना, ठीक है ना, तजवीद के अंदर महारत हासिल करना, क्योंकि अरबों ने इस फन को इसीलिए मुदव्वन किया है कि कुरान करीम को सही तिलावत की जाए। लिहाजा उम्मत पर जिम्मेदारी आयद होती है कि हर दौर में ऐसे आदमी तैयार करती रहे जो तजवीद और किरात में माहिर हों। इसलिए अल्लामा जिज़री रहमहुल्लाह ने अपनी किताब मुकदमतुल जिज़री के बाब मारफतुत तजवीद में फरमाया है, वल अख्ज़ु बित तजवीद हत्मुल लाजिम मल्लम युजव्विदिल कुरान आसिम। अल्लाह अकबर, कितनी बड़ी बात कर दी उन्होंने। क्या फरमाते हैं कि कुरान यानी इल्म तजवीद को हासिल करना वाजिब और ज़रूरी है, और जो शख्स कुरान करीम को तजवीद के साथ ना पढ़ेगा वो गुनाहगार होगा। अब देखें उन्होंने अगर ये मिसाल से समझाया कैसे। कहते हैं मसलन कोई आदमी अल्हम्दुलिल्लाह, हाँ, जिस तरह हम लोगों ने उस लास्ट दिन देखा था, एक होता है हा और एक होता है हा। ठीक है। मैंने अदा किया था इस हा को वस्ताउल हलक से, हलक के दरमियाने हिस्से से, जैसे कि ये हलक है, ये हलक का अक्साउल हलक, ये वस्ताउल हलक और ये अदनाउल हलक। ठीक है। तो मैंने इसको अदा किया था हा वस्ताउल हलक से। ठीक है। और ये वाला हा होता है अदा अदना अक्साउल हलक से, जो कि सीने के करीब वाला हिस्सा है। ठीक है। तो कैसे, हमजा हा, आइन हा, आइन हा, फिर गैन खा ऊपर से। ठीक है ना। तो ये हा कहाँ से अदा हुआ, यहां से, और ये वाला जो हा है ये अदा हुआ नीचे से। अब देखें अगर कोई शख्स सूरतुल फातिहा पढ़ता है नमाज के अंदर, क्योंकि नमाज तो मोमिन पढ़ते हैं, सब पढ़ते हैं नमाज, जो मोमिन है वो नमाज पढ़ते हैं। ठीक है। तो अब जो पढ़ते हैं नमाज, उन्होंने क्या किया, नमाज शुरू की, पहले ही अलहम्दु पढ़ना शुरू कर दिया। किसकी जगह, अलहम्दु की। अलहम्दु और अलहम्दु, फर्क देखें। अब कोई शख्स पढ़े अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन और अल आलमीन, फर्क देखिए, आइन और आ गया, अलिफ हमजा आ गया। अब बताएं जरा कि ये देखें कि फर्क देखें। अब क्या लगता है आपको कि अल हा का मतलब कुछ और नहीं होगा और इस हा का मतलब कुछ और नहीं होगा? जरूर, बिल्कुल। अब देखें वो क्या कह रहे हैं इसका। वो कह रहे हैं कि अल आलमीन को आलमीन पढ़े तो जाहिर है कि इसने कुरान मजीद में तगय्युर व तबद्दुल कर दिया, यानी चेंजिंग्स कर दी, और ऐसी गलतियों से बचना वाजिब और लाजिम है, जो कि कुरान करीम अल्लाह रब्बुल इज्जत का कलाम है और बगैर किसी तगय्युर के रसूलुल्लाह सल्लम के दिल पर नाजिल हुआ है, और बिल्कुल ठीक इसी तरह सही असनाद के साथ हम तक पहुंची, जिस तरह कुरान करीम की हरकत व सकनात और हरूफ व कलमात आज तक महफूज हैं। इसी तरह इसका तरीका अदायगी भी मन और अन, तरीका अदायगी मतलब अदा करने कैसे, पढ़ने का तरीका भी एज इट इज हम तक आज पहुंचाया गया। ठीक है। और देखिए एक बात याद रखें,
अल्लाह ताला ने ना कुरान मजीद के अंदर तब्दीली करने का हक रसूलुल्लाह सल्लम को भी नहीं दिया। अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं कि अगर ये नबी, आप अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं, ये तो वही कुछ कहते हैं जो हम इन्हें हुक्म देते हैं। अगर ये अपनी तरफ से कोई बात कह दें तो हम इनकी रगे जान काट दें। रसूलुल्लाह सल्लम के बारे में अल्लाह कह रहे हैं कि अगर ये अपनी तरफ से कुछ कहें तो हम इनकी रगे जान काट दें। यानी अल्लाह का पैगाम नाजिल कर रहे हैं, तो रसूलुल्लाह सल्लम को भी इतनी अल्लाह ताला ने इजाजत नहीं दी कि वो जबर जेर भी इसमें चेंज कर सकें या उसमें किसी भी किस्म की तब्दीली कर सकें। तो हम लोग अनजाने में इतनी बड़ी गलती कर रहे हैं कि हमें अंदाजा ही नहीं है कि हम हा को हा पढ़ रहे हैं और जाल को जा पढ़ रहे हैं, सीन को सा पढ़ रहे हैं, सा को सीन पढ़ रहे हैं। तो देखिए ना हम किस कदर गुनाहगार हो रहे हैं। इल्म जो है वो इंसान पर दरवाजे खोलता है। इल्म इंसान की आंखों के आगे से पर्दे हटाता है। फिर भी इंसान को पता लगता है वो किस कदर जुल्मात के अंदर खड़ा था, किस कदर अंधेरों में खड़ा था। ठीक है ना। तो देखिए फरमाते हैं आगे, मज़कूरा वाला आयात और हदीस से वाज़ेह हो गया है कि कुरान मजीद तजवीद के साथ नाजिल हुआ है, क्योंकि अल्लाह ताला ने जगह जगह इरशाद फरमाया है कि हमने कुरान को अरबी ज़ुबान में उतारा और तजवीद सही अरबियत के साथ पढ़ने का नाम है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अफसाहुल अरब और सबसे बड़े मुजव्विद थे, इसलिए जो शख्स कुरान को खिलाफ तजवीद पढ़ेगा वो गलत पढ़ेगा और इसकी तिलावत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तिलावत के मुवाफिक ना होगी। और सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि एक शख्स ने इनके सामने लफ्ज अल फुकराउ को बगैर मद के पढ़ा, यानी उसने पढ़ा अल फुकराउ, हालांकि ये इस पे मद है। ठीक है ना। तो अल फुकराउ इस तरह पढ़ना चाहिए था। तो क्या फरमाते हैं कि आपने फरमाया कि हमको अल्लाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह नहीं पढ़ाया, फिर आपने मद के साथ पढ़कर बताया। ठीक हो गया। तो इस कदर जरूरी है, इस कदर जरूरी है। अब देखें, फिर आगे एक और कौल नकल किया गया है हज़रत अली रदियल्लाहु अन्हु अमीरुल मोमिनीन का, कि फरमाते हैं कि उनसे दरियाफ्त किया गया, उनसे पूछा गया कि तरतील किसे कहते हैं। यानी अल्लाह ताला फरमा रहे हैं ना कुरान मजीद के अंदर, वरत्तिल कुरान तरतीला, कि कुरान को तरतील के साथ पढ़ें। तो उनसे पूछा गया कि तरतील क्या है। तो फरमाने लगी अत-तरतील हुवा तजवीद, तो हुवा तजवीदुल हुरूफ वल मारिफतुल वुकूफ। यानी हरूफ को तजवीद के साथ अदा करना और औकाफ में माहिर होना, होने का नाम तरतील है। औकाफ कहते हैं वक्फ करने की जगह को, कि आपने कहाँ वक्फ वक्फ करना है, आपको पता हो कि कहाँ, यूं नहीं कि हर जगह वक्फ कर लिया, या जहाँ जाना रुकना था वहां रुके नहीं, और जहाँ जो है ना नहीं रुकना था वहां रुक गए। तो उन्होंने कहा कि तजवीद, हर हर्फ को तजवीद के साथ पढ़ना, कि आपको पता हो कि हर हर्फ का हक क्या है। ठीक है। और वक्फ करना सही अंदाज से, वक्फ के अंदर माहिर हो जाना औकाफ के अंदर, इसी का नाम तो तरतील है। जो अल्लाह फरमा रहे हैं वरत्तिल कुरान तरतीला, कुरान को तरतील के साथ पढ़। ठीक है। तो आज का हमारा ये सबक था। इसके अलावा अब हम प्रैक्टिस करते हैं इंशाअल्लाह ताला, स्टार्ट करते हैं। जैसा भी होगा, जिसको जैसा पढ़ना आता है वो वैसा पढ़ेगा। देखिए हम लोग यहाँ पर सीखने के लिए बैठे हैं, ना कि एक दूसरे को जज करने के लिए बैठे हैं कि ओह फलाने कैसा पढ़ा। हम तो यहाँ सीखने के लिए आए हैं ना। अगर कोई शर्माएगा, नहीं सुनाएगा, माइक ऑन नहीं करेगा, तो फिर वो पीछे रह जाएगा। फिर आपको कोई भी फायदा नहीं है यहाँ पर टाइम देने का, अगर आप सुनाते नहीं है। ठीक है ना। तो आप लोगों की असाइनमेंट ये है, मैं ग्रुप के अंदर भी बता दूंगी। आप लोगों की असाइनमेंट ये है कि जो हमने पहला सबक जो पढ़ा है अहमियत तजवीद के, जो हमने पहला सेशन पहले लिया था और आज ये दूसरी हमारी क्लास है, आप लोगों ने इसके अंदर जितनी भी कुरानी आयात और कुरानी जो हदीस बताई गई हैं, उन सबको बेशक आप लोग इनका सिर्फ तर्जमा याद कर लीजिएगा। अगर आपसे नहीं हो पाता, मुश्किल लगती है, गिरां गुजरता है इसकी अरबी इबारत को याद करना, तो सिर्फ और सिर्फ उर्दू याद कर लीजिएगा। ठीक है। और चाहे तो बेशक दो इसको इस असाइनमेंट को दो असाइनमेंट के अंदर भी कन्वर्ट किया जा सकता है। ठीक है। जैसे आप लोगों का आसानी रहे, ग्रुप में बता दीजिएगा। ठीक है। तो आज इंशाल्लाह ताला हमारा ये पहला लेसन जो है, वैसे तो ये पहला नहीं है, पहला तो नेक्स्ट है, लेकिन ये भी हम इसको हम पहला कंसिडर कर लेते हैं, क्योंकि हमने दो लेक्चर्स के ऊपर लिए हैं। ठीक है। तो इस पहले आपने लेक्चर को, पहले दो लेक्चर्स को अच्छी तरीके से तैयार करना है और इनको आपने ग्रुप के अंदर सुनाना है वॉइस मैसेज के जरिए। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब हम लोग अपना पढ़ते हैं। हम देखते हैं, कुरान मजीद खोलते हैं और कुरान मजीद के जरिए हम लोग कोशिश करते हैं अपनी प्रैक्टिस की, इंशाअल्लाह ताला। अच्छा जी, सबसे पहले
ہمارے پاس ہے سورۃ الفاتحہ، اور سورۃ الفاتحہ کو ہی ہم پہلے سیکھیں گے، کیونکہ ہم یہ قرآن نماز کے اندر بارہا پڑھتے ہیں۔ اچھا جی، سب سے پہلے ہم نے آج سیکھنی ہے اعوذ باللہ اور بسم اللہ، ٹھیک ہے؟ کیونکہ یہ پہلا 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 ہمارے پاس پوائنٹ ہے، ٹھیک ہے؟ تو میں اعوذ باللہ پڑھتی ہوں، یہاں پر ویسے اعوذ باللہ نہیں لکھی ہوئی، ٹھیک ہے؟ تو آپ لوگوں نے مجھے میں بار بار پڑھوں گی، آپ نے اس کو غور سے سننا ہے، اور پھر میں آپ کو کہوں گی کہ آپ نے مائک آن کریں اور ایک ایک کر کے سناتے جائیں، جو سناتا جائے وہ اپنا ہینڈ ریز کرتا جائے۔ ہینڈ ریز آپ لوگوں کو پتہ ہی ہوگا نا کہ کہاں سے کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ چلیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اعوذ، ذال، ذال ہے، ٹھیک ہے؟ ذال کو باریک کر رہا ہے، عین کو حلق کے درمیانی حصے سے نکالنا ہے۔ عین کو آپ پڑھیں گے تو آپ کی جو حلق کا درمیانی حصہ ہے وہ وائبریشن ہوگی، وہاں پر وائبریٹ کرے گا، ٹھیک ہے؟ اعوذ، اعوذ، ذال، ٹھیک ہے؟ ذال، اعوذ، صرف اتنا سنا ہے مجھے، اعوذ۔ جلدی جلدی سناتے جائیں، ٹھیک ہے؟ ٹائم کم ہوتا ہے۔ سنائیں زہرا، سنائیں آپ۔ أعوذ ہوں، ٹھیک ہو گیا، باقی بھی سنائیں، جلدی جلدی سنائیں چندہ سب لوگ۔ أعوذ ماشاء اللہ۔ أعوذ مریم چندہ آپ کی آواز نہیں آئی۔ أعوذ ٹھیک ہے، زری آپ سن دوبارہ۔ أعوذ ٹھیک ہے، زہرا آپ نے سنایا ہے؟ نور آپ نے؟ یس میم میں نے نیم چینج کیا ابھی سنا دیا تھا میں نے سنا دیا تھا آپ نے؟ جی دوبارہ سنا دوں جی سنا دیں، سنا دیں۔ أعوذ ٹھیک ہے، ماشاء اللہ، بارک اللہ فی۔ اعوذ باللہ، باللہ، ہاں، ہاں نکلے گا کہاں سے؟ جو کہ ہماری سینے کی ہڈی والا، جو سینے کی طرف کا حصہ ہے، وہاں سے نکلے گا ہاں، ٹھیک ہے؟ پہلے جو ہم نے ہا نکالا تھا وہ نکال رہے تھے ہم لوگ وسط الحلق سے، جہاں سے ہم عین نکالا تھا اعوذ کا، ٹھیک ہے؟ جہاں سے عین نکالا تھا وہ تھا درمیانی حصہ، اب ہم نے سینے کی طرف کا جو حصہ ہے، سینے کی جانب جو حصہ ہے وہاں سے نکالا ہے ہم نے، کیا کیا نکالنا ہے؟ ہا، حمزہ ہا وہاں سے نکلے گا، ٹھیک ہے؟ کیسے؟ اعوذ باللہ، ہی، ٹھیک ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ تو کو کیا کرنا ہے؟ موٹا کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ شیطان الرجیم، نر، نر، تھوڑا سا اس کو شدت دینی ہے کیونکہ تشدید ہے، ٹھیک ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ رجیم کے اندر جیسے رحیم ہے، یہاں پر یا ہے نا، تو یہ یہاں پر مد مد ہے، ٹھیک ہے؟ حروف مدہ ہے یہ، اس وجہ سے ہم نے اس کو تھوڑا سا لمبا کیا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اب آپ لوگ سب، میں ایک بار پڑھوں گی سب، اس کے بعد ہر ایک نے اپنا اپنا مائک آن کر کے جس کا میں نام لوں گی اس نے سنانا ہے، ٹھیک ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ فائزہ آپ سنائیں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم چندہ ہا کو دوبارہ پڑھیں، اعوذ باللہ، ہی، ٹھیک ہے؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ماشاء اللہ، بارک اللہ فیک۔ اچھا جی، خدیجہ آپ سنائیں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ماشاء اللہ، مریم آپ سنائیں چندہ۔ أعوذ بالله من آپ کی آواز الشيطان نہیں آ رہی ہے مجھے گڑیا۔ अब आ रही है आवाज؟
थोड़ा सा माइक करीब करें अपने। अब आ रही है आवाज? जी जी, अब आइए, अब सुनाए, अब सुनाए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। ठीक है, आवाज मुझे बहुत कम आई, खैर आप ग्रुप में सुना दीजिएगा, ठीक है, बाद में। नूर, आप सुनाए। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم माशा अल्लाह, बारक अल्लाह। जहरा, आप सुनाए। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم नहीं चंदा, नहीं, दोबारा, हम दोबारा पढ़ते हैं, ठीक है। अऊज़ु, अऊज़ु बिल्लाहि, ही, ठीक है। अऊज़ु أعوذ बिल्लाहि بالله मिनश शै-। من الشيطان الرجيم तो को मोटा करें, तो, निर, निर, दोबारा करें। الشيطان الرجيम दोबारा पढ़ें, पूरा पढ़ें दोबारा एक बार। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم तोन नहीं करना, ठीक है, तोन हमने नहीं करना, ठीक है। तो सिर्फ तो शैतो। أعوذ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم बेहतर बेहतर, माशाल्लाह, इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। إن شاء الله जरी, आपने सुना दिया चंदा? नहीं नहीं सुनाया। सुनाए मेरी प्यारी। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। हम दोबारा पढ़ते हैं, ठीक है। आऊज़ु, ठीक है। बिल्लाही ही पढ़ना है हमने, हा के अंदर आइन नहीं लेके आना, ठीक है। हा हमने कहाँ से पढ़ना है? हमने पढ़ना है अपने गले के, जो हमारा गले के सीने की तरफ का हिस्सा, वहां से पढ़ना है। आऊज़ु बिल्लाही, फिर मिनश शैतो, तो को करना है मोटा, क्योंकि हरूफे, ये हरूफे मुस्ताले में से, ठीक है। शैतो, फिर निर्रजीम, दोबारा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। चदा, यहाँ पे गलती हो रही है कि हम क्या कर रहे हैं, हा, हा की जगह हा पढ़ रहे हैं, ठीक है, हमने हा नहीं पढ़ना। दोबारा पढ़ें, बिस आऊज़ु बिल्लाही पढ़ें, बस आऊज़ु बिल्लाही। अऊज़ु बिल्लाहि। माशाल्लाह, अब बेहतर है, अब दोबारा 3 बार पढ़ें इसको। आऊज़ु अऊ- बिल्लाही। अऊज़ु बिल्लाहि। बेहतर, आगे। अऊज़ु बिल्लाहि। हम्म। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। हाँ, ये आपने अगली दफा जब पढ़ेंगी ना आउज़ु बिल्लाह, तो ये खुद नोट करके पढ़ना है कि मेरी हा की जगह हा ना निकले। आउज़ु बिल्लाही, ही, बिल्कुल आराम से हवा को बाहर निकालना है। आउज़ु बिल्लाही मिनश शैतानिर रजीम। ठीक हो गया? सबने सुना दिया है जी। ना, कोई रह तो नहीं गया? चलें, टाइम हमारा कितना रह गया है? चलें, ठीक है, इंशाल्लाह ताला हम इसको कंटिन्यू करेंगे। अब आपने क्या करना है, आपके सिर्फ 2 काम है, ठीक है। चलें, आप ना असाइनमेंट को हम 2 के अंदर शिफ्ट कर लेते होते हैं। कैसे करनी है? आपने सिर्फ और सिर्फ पहला पेज जो है उसको ग्रुप के अंदर भेजना है, पहला पेज याद करना है। उसके अंदर जितनी भी आयात मौजूद हैं, 3 आयात गालिबन आ रही हैं और एक हदीस आ रही है, आपने उन 3 आयात और एक हदीस को, जिसका स्टेमिना है वो याद कर ले, बेशक अरबी को। अगर अरबी याद करना मुश्किल होती है तो सिर्फ तर्जमा आप लोगों ने याद करना है अच्छे तरीके से, और उसको क्या करना है, वॉइस करके सुनानी है। ग्रुप के अंदर मैं ग्रुप खोल दूंगी, आपने फजूल मैसेज किसी ने नहीं करना, ठीक है। उसके बाद आपका दूसरा काम ये है कि आपने आउज़ु बिल्लाह की प्रैक्टिस करनी है। मैं आउज़ु बिल्लाह की एक वॉइस नोट भेज दूंगी ग्रुप के अंदर, आपने उसको बार बार सुनना है और पूरी हद तक कोशिश करने के बाद आपने वॉइस नोट भेजना है। यूं नहीं कि एक बार सुना और फिर भेज दिया, ठीक है। उसे बार बार पढ़ना है, फिर खुद पढ़ना है, सुनना है, फिर खुद पढ़ना है, फिर देखना है कि डिफरेंस क्या है, फिर उसके बाद पूरी कोशिश करके
محنت کر کے پھر آپ نے اعوذ باللہ مجھے وائس نوٹ گروپ میں بھیجنا ہے، پھر میں اسے وہاں پر چیک کروں گی اور آپ کی غلطی جو ہوگی اسے مینشن کر دوں گی، ٹھیک ہو گیا نا انشاءاللہ تعالی؟ بارک اللہ بکم، اللہ تعالیٰ آپ سب کو بہت زیادہ علم عطا فرمائے، تقوی عطا فرمائے، خوشیاں عطا فرمائے، محبتیں، رزق آپ پر وسیع کر دے، علم کے دروازے کھول دے۔ اور یاد رکھنا، یاد رکھیے گا کہ کہ آپ دھوکہ نہیں کرنا۔ دیکھیں دھوکہ ویسے بھی برا ہے، اور خاص طور پہ اللہ کے دین کے اندر کہ چیٹنگ کر کے سنا دیا جائے، یا پھر جو ہے نا چیٹنگ کر کے اسائنمنٹ بھیج دیا، یہ سب سے برا ہے اللہ کے دین میں، کہ رسول اللہ نے فرمایا من غشنا فلیس منا، جو ہمیں دھوکہ دیتا ہے وہ ہم میں سے نہیں، ٹھیک ہے؟ تو دھوکہ نہیں دینا، ٹھیک ہو گیا؟ انشاءاللہ تعالیٰ پوری کوشش کرنے، نہیں آتا مجھ سے پرسنل میں آ جائیں، پرسنل میں بات کر لیں، پرسنل میں آپ کو بتا دوں گی، گروپ میں بات کر لیں، بے شک کوئی مسئلے کی بات نہیں، انشاءاللہ تعالیٰ ہم پوری کوشش کریں گے، اور سب کو انشاءاللہ ساتھ لے کے جانا ہے، کوئی بھی پیچھے نہیں رہنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ ایسا نہیں ہے میرے لیے سب برابر ہیں، میں سب کو سکھا، ہم لوگ سب سیکھنا چاہتے ہیں، ہم سب سیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو پریشان نہیں ہونا، ہمت نہیں ہارنی، اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو بہت زیادہ رزق اور سکون اور علم کی توفیق عطا فرمائے، علم حاصل کرنے کی، اور علم میں پختگی عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ آپ سب کو استقامت عطا فرمائے، یوں نہ ہو کہ دن بدن لڑکیاں کم ہوتی جا رہی ہوں، ٹھیک ہے نا؟ تو دیکھیں آپ لوگ چنی ہوئی لڑکیاں ہیں، کہ 100 میں سے گروپ کے اندر 100 لڑکیاں ہیں، اور میں سے آپ لوگوں کو اللہ نے چنا ہے، 7 لڑکیاں آ رہی ہیں، تو کتنی بڑی بات ہے، دیکھیں اللہ نے آپ کو چنا ہے، تو آپ نے اس کا حق ادا کرنا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو چنا ہے تو آپ نے اسی ظاہر کرنا ہے کہ کچھ ہمارے اندر کچھ خاص تھا، کچھ تڑپ تھی، اور ہم نے اس تڑپ کو کمپلیٹ کرنا ہے اللہ کی خاطر، خالص نیت کے ساتھ، پوری سیکھنے کی نیت کے ساتھ، ٹھیک ہو گیا نا؟ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق خاص عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس سیکھنے اور پڑھنے کے بدولت جنت الفردوس میں داخل کر دیں، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔